Good morning children, 11th science. Today in structure of atom we will see about photoelectric effect. It was given by, explained by Hertz in 1887. What is photoelectric? Photo means light. Okay. So emission of electron when light is bombarded or light is given. So when certain elements like potassium, rubidium, cesium, etc. were exposed to beam of light, then electrons were ejected. This phenomenon only is photoelectric effect. There is no time lag, okay, in bombarding, striking and ejection of electron. The number of electrons ejected is directly proportional to intensity of light. For each metal, हर एक मेटल का देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी. हर मेटल के लिए कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी विच इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड इट इज डिनोटेड बाय न्यू जीरो. ओके, दिख रहा है न्यू जीरो, बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड. यानी हर एक मेटल का अपना एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उतने पे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगी. द इलेक्ट्रॉन्स, ये ई माइनस जब लिखो तो समझ जाना इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी एंड दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर इजेक्ट होंगे तो उनका कोई अपना वेलोसिटी होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी और वो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ इंक्रीज होगा. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट डज डिपेंड, डज मतलब होते हैं, डज डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट, बट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ लाइट. ये पॉइंट याद रखना. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन is proportional to the frequency of electromagnetic radiation. Okay, so kinetic energy is given by half mv square, you know. So half me लिखा है ना यहाँ मैंने, क्योंकि mass me मतलब mass of electron and v means velocity of ejected electron. So half mv square is equal to h nu. h nu क्या बेटा, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा E is equal to h nu. So h nu minus h nu zero. What is nu zero? Threshold frequency. Okay. So इसको इस साइड उठा के ले आओ तो h nu is equal to h nu zero plus half mv square. m के नीचे small e है, means this is mass of the electron and v means velocity of the electron. This also we have to remember. Then comes a numerical is there. That is problem number 2.6. Let me explain you. Then other problems are solved there. If you will not be able to understand, tell me. Calculate the energy of 1 mole of photons of radiation whose frequency is given. ठीक है, एनर्जी निकालना कितना, 1 mole of photon. तो पहले तो E is equal to h nu we know. H की वैल्यू क्या बताई थी, H is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34. याद है, जूल सेकेंड. So E is equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34. H की वैल्यू into what is the nu? Nu means frequency 5 into 10 raised to power 14. When you will multiply this figure, it will become, let me show you. When you will multiply, this will become 33.13 into 10 raised to power minus 20, minus 34 plus 14 is equal to, left side ले जाओ डेसिमल को, तो 3.313 into 10 raised to power minus 20 और लेफ्ट जाते हैं तो प्लस 1 यानी minus 19. ठीक है, एनर्जी है इसलिए यूनिट क्या होगी बेटा, जूल. ओके, नाउ दिस इज एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कैसे निकालेंगे, 1 फोटोन का इतना, तो 1 मोल यानी कितना होता है, 6.022 इंटू 10 raised to power 23 इंटू 3.313 इंटू 10 raised to power minus 19. Okay, so when you will multiply, it will become
199, let me show you, 6.022 into 3.313. So 19950.886 into 10 raised to power 23 minus 19 यानी 4. ओके, सो डेसिमल ले जाओगे इधर तो 1, ये यहाँ पॉइंट नहीं आएगा. हाँ, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 18, यहाँ 19.950 है ना. सो 19.950 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. तो वी कैन ऑल्सो राइट इट, लेफ्ट में ले जाओगे तो 1.995 इंटू 10 रेज़ टू पावर 1 डिजिट इधर ले गए तो 10 रेज़ टू पावर 5 आ जाएगा बेटा. लेफ्ट ले आते हैं तो प्लस करते हैं तो 10 रेज़ टू पावर 5. ओके, सो दिस विल बी द आंसर. नाउ दिस इज जूल. When you will convert it in kilojoule, तो किलो जूल को किलो जूल बनाने के लिए क्या करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 3 से डिवाइड करोगे. ओके, तो इट विल बिकम 199.51 किलो जूल. दिस विल बी द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल सॉल्व फ्रॉम द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.7. कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ अ लाइट हुज पीरियड इज गिवन. ठीक है, तो पीरियड की यूनिट एस है, तो इससे यूनिट फ्रीक्वेंसी निकालना है. तो फ्रीक्वेंसी यानी 1 अपॉन पीरियड. सो 1 अपॉन 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -10 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 सेकेंड इनवर्स. सेकेंड वन इज वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर. तो नाउ कैलकुलेट वेवलेंथ. वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाई लेमडा. सी की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9. ओके, सो 5 6 या 30, 0.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 minus 9. So 8 minus 9 is -1. Okay, so it will be decimal 6 into 10 raised to power -2. बराबर, -2. ठीक है, ये क्या हो गया बेटा हमारा मीटर. कैलकुलेट. देन कम्स 6 into 10 raised to power -2 मीटर. ओके, देन कम्स वेव नंबर. वेव नंबर क्या बताया था, न्यू बार. न्यू बार का कैसे वैल्यू निकालते हैं, 1 अपॉन लेमडा. सो सिंपली 1 अपॉन 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 कर दो और डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 16.66 मीटर इनवर्स. ठीक है, 1 अपॉन मीटर यानी मीटर इनवर्स. दिस विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2.8 फ्रॉम एक्सरसाइज ओनली. What is the number of photons of light with a wavelength of 4000 picometer? तो 4000 picometer को पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो. सो 4000 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 मीटर. सो इट विल बिकम, लेट इट बी दिस मीटर, छोड़ दो इतना. ठीक है. नाउ E इज इक्वल टू NhC बाय लेमडा, वेयर N इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स. यहाँ लिख दो ऐसा, N is equal to number of photons, that only we have to calculate. So n is equal to E into lambda upon hc is equal to E की वैल्यू क्या रखी, E तो मालूम है हमें कितना, 1 जूल दे रखा है. E is 1 जूल. So 1 into 4 into 10 raised to power 4000 कर रहे हैं ना डायरेक्ट, 4000 पिकोमीटर. तो 4000 into 10 raised to power -9 divided by h यानी 6.626 into 10 raised to power -34 into 3 into c means velocity of light, 3 into 10 raised to power 8 meter per second. Okay, so when you will calculate it will be give, so when you will calculate it will give you the value 2.012 into 10 raised to power 16 photons. So this will be the answer. Then comes question number 2.9. If you will read question number 2.9, the question is a photon of wavelength, yani wavelength is given 4 into 10 raised to power -7 meter. Okay, it strikes the metal surface. The work function of the metal is
2.13 electrovolt E volt, ठीक है. And calculate the first one, calculate the energy of the photon, energy of photon. Second one is kinetic energy of the emission, and third one is the velocity of photoelectron, the velocity of photoelectron. ठीक है, ये कैलकुलेट करना है. और 1 EV की वैल्यू दे रखी है. 1 EV इज इक्वल टू 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ओके, सो एनर्जी ऑफ फोटोन, फर्स्ट वन वी विल कैलकुलेट. सो एनर्जी इज इक्वल टू hc बाई लेमडा, ये हमने पढ़ा हुआ है. सो इज इक्वल टू h इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये हमें याद रखना है. इंटू लाइट की वेलोसिटी याद रखनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई lambda is given to us 4 into 10⁻⁻7. So when you will calculate, it will give us 4 into और एनर्जी दे रखा है आपने को, एनर्जी दे रखा है दैट इज 4.97 into 10⁻. So calculate it, it will give you the value 4.97 into 10⁻⁻19 जूल. ओके, नाउ ईवी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, दे रखा है हमें कि 1.6020 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 EV. ओके, देयरफॉर 4.97 इंटू 10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 4.97 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1.602 इंटू 10⁻⁻19. कैंसिल हो गया. सो डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 3.10 EV. ये EV में कन्वर्ट कर दिया. दिस वैल्यू वाज गिवन इन द क्वेश्चन एंड इट विल बी गिवन. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिशन. सो काइनेटिक एनर्जी यानी हाफ mv स्क्वायर. ओके, सो हाफ mv स्क्वायर इज गिवन बाय, अभी हमने पढ़ा था h न्यू माइनस h न्यू 0. ओके, so h nu is given to us 3.10, अभी हमने कैलकुलेट किया 3.10, और माइनस इट इज गिवन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज ऑल्सो गिवन 2.13, सो 2.13 ये वर्क फंक्शन है. ठीक है, इट इज गिवन टू अस, सो इसको माइनस कर दोगे इट विल बी 0.97 EV. दैट विल बी द आंसर. ये V है, हाँ, न्यू नहीं है. थर्ड वन इज क्वेश्चन इज द वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन. So half mv square is equal to 0.97 EV. अभी हमने इसमें से कैलकुलेट कर लिया. EV is equal to 0.97 into 1.602 into 10⁻⁻19 जूल. कैलकुलेट जूल में कर दिया. इज इक्वल टू हाफ इंटू एम की क्या वैल्यू थी, इलेक्ट्रॉन का मास कितना पड़ा था हमने 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg. ओके, इंटू वी स्क्वायर. देयरफॉर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं. इज इक्वल टू 0.97 इंटू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 और वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.341 इंटू 10⁻12. ठीक है, इज इक्वल टू, इसको 12 को 10 बना लें अगर हम, तो 34 इधर डेसिमल 34.1 इंटू 10⁻10. देयरफॉर v के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे. v इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट लोगे कैलकुलेटर में से तो आ जाएगा 34.1 square root will be 5.8. So 5.84 into इसका स्क्वायर रूट में क्या करोगे बेटा 10⁻5⁵2. समझ में है, तो 10⁻5. ये हमारा आंसर हो गया मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड यूनिवर्स. So in this way we will solve the questions, and tomorrow I will explain you Heisenberg's uncertainty principle and the spectrum.